بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، جنت اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا اور وہ موجود ہے۔ جنت کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینے والی چیز، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ نے جس جنت کو اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے اسے کسی نگاہ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کے کان میں اس کے تعلق سے باتیں کی گئی، اور نہ دل پر اس کا وہم و گمان اور خیال گزرا۔ جنت معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا۔ قرآن مجید اور احادیث میں جب جنت کی طرف ترغیب دی جاتی ہے اور اہل جنت کی صفات بیان کی جاتی ہے تو یہ صرف ہماری تسلی کے لیے نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ بعض لوگ جنت کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ موجود نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کو تسلی کے لیے بتائی جا رہی ہے، اللہ نے اس کو ابھی پیدا نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں باطل عقیدے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے مثل الجنۃ التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها، کہ متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال ایسی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اس کے پھل اور سائے دائمی ہوں گے۔ آگے اللہ نے کہا کہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو بشارت دیجیے اس جنت کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب بھی انہیں پھل دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو دنیاوی پھل کی طرح ہے، حالانکہ ظاہری اعتبار سے دنیا کے پھل کی طرح ہوگا، لیکن اس کی لذت، اس کی مٹھاس، ساری چیزیں بالکل جدا ہوں گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنتی لوگ تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، انہیں نہ گرمی لگے گی اور نہ ہی ٹھنڈک۔ الغرض جنت کی لذت اور عشرت ایسی ہے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ یہاں قرآن مجید نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی کہ جنتی لوگوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہاں نہ انہیں گرمی لگے گی اور نہ ٹھنڈک، اور یہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ بہت زیادہ گرمی بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے، نہ بہت زیادہ سردی۔ معتدل موسم ہمارے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے، اور یہی ہمارے زمین کے باشندے نہ ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ ایک سائنسی تحقیق اس بارے میں آ بھی چکی ہے کہ انسان دراصل زمین کے پر رہنے والا باشندہ نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور جگہ کے پر پیدا کیا گیا اور دوبارہ اس کے بعد اس کو یہاں پر لایا گیا ہے، تبھی یہاں کا ماحول اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈی وہ برداشت نہیں کر پاتا، بہت گرمی برداشت نہیں کر پاتا، بہت زیادہ بارش اسے تکلیف دیتی ہے۔ موسم کی تبدیلی کے وقت اس کے جسم کے پر مختلف قسموں کے عوارض اور بیماریاں حملہ کرتی ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ دراصل انسان زمین پر نہیں بلکہ کسی اور جگہ رہنے کے قابل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو حقیقت بیان کی ہے اس کی چند جھلکیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے جنت کے 100 درجات بنائے ہیں اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ جنت الفردوس ہے۔ جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بہترین حکمت عملی ہے۔ اگر ایک کلاس میں 100 بچے ہیں، 100 کے 100 بچوں کو کہا جائے کہ تم سب کو 1 نمبر آنا ہے، حالانکہ سارے بچے 1 نمبر نہیں آئیں گے، کوئی دوسرا ہوگا، کوئی تیسرا ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے بچے پاس ہو جائیں گے، ہر کوئی فیل ہونے سے بچ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت یعنی جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، صرف جنت میں جانے کی نہیں۔ اور جب بندہ جنت الفردوس کے لیے جستجو کرے گا اس کے اعمال، اس کی محنتیں ویسی ہی ہوگی جیسا کہ ایک بچہ فرسٹ آنے کے لیے محنت کرتا ہے، اسی طرح ہم زیادہ سے زیادہ جنت الفردوس کے حصول کے لیے محنت کریں گے، اور یہی ہمارے جنت میں داخلے اور اعلیٰ ترین درجات کے حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
जन्नत में एक कदम रखने की जगह दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और अगर जन्नत की एक हूर दुनिया की तरफ झांक दे तो पूरी दुनिया रोशन और मुअत्तर हो जाए, और उनका दोपट्टा दुनिया माफिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है। आखिर दुनिया के मुकाबले में जन्नत की इतनी अहमियत क्यों बयान की गई? इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह दुनिया फ़ानी है और जन्नत फ़ानी नहीं, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, दुनिया फ़ना हो जाएगी। अगर किसी को पूरी दुनिया भी दे दी जाए तो क्या फ़ायदा? उसे खुद भी फ़ना होना है और दुनिया को भी फ़ना होना है। जबकि जन्नत में एक कदम रखने की जगह अगर मिल गई तो ना वो जगह फ़ना होगी और ना वहाँ पर रहने वाला फ़ना होगा। इस एतबार से जन्नत की हकीकत सबसे आला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के अंदर हर जुमा को एक बाजार लगेगा जिसमें लोग आएंगे, एक शिमाली हवा चलेगी जो उन जन्नतियों के कपड़े और चेहरों से होकर गुजरेगी, उससे उनके हुस्न जमाल में इजाफा होगा। जब अपनी बीवियों के पास लौट कर आएंगे ये उनसे कहेंगी, अल्लाह की कसम हमारे पास से जाने के बाद तुम्हारा हुस्न जमाल बढ़ गया है। मुस्लिम की रिवायत बताती है कि जन्नतियों को जिस हालत में रखा जाएगा उसी के पर ये रुके हुए नहीं होंगे, बल्कि इनकी हालत और इनकी नेमतों में दिन ब दिन इजाफा होगा, और वहाँ पर भी दिन दुनिया की तरह होंगे। जैसा कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर जुमा को बाजार लगेगा, यानी जिस तरह हम दुनिया में दिन बिता रहे हैं जन्नत के अंदर भी उसी तरह दिन बिताने के लिए दिया जाएगा, वहाँ पर भी जुमा का दिन आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, एक जन्नती को 100 आदमियों के बराबर खाने पीने और जिमा व शहवत की ताकत होगी। उनकी क़दाए हाजत ये होगी कि चमड़ों से मुश्क जैसा पसीना निकलेगा, फिर उनका पेट सिमट जाएगा। अहमद और नसई की रिवायत बता रही है, इंसानी ख्वाहिशात दो चीज़ों के पर मुनहसर होती है, एक खाने पीने से मुतालिक जो अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी तौर पर हमारे अंदर रखी है, और दूसरे नफ्सानी ख्वाहिशात से मुतालिक। अल्लाह दोनों ताकतें इतनी देगा कि 100 आदमियों के बराबर होगी। इंसान अगर दुनिया में अपने पेट से ज़्यादा खा ले, कभी एक के बजाय 2 आदमियों के बराबर खाना खा ले, तो आप देख लीजिए उसको क्या तकलीफ होती है, चाहे वो खाना मुफीद ही क्यों ना हो, उसे तकलीफ होती है। लेकिन जन्नत में 100 लोगों के बराबर खाने के बाद उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि हाजमे का बिल्कुल आसान सा रास्ता कि जिस्म से पसीना निकलेगा जो मुश्क के मानिंद होगा, और पहले की तरह इंसान अपनी कंडीशन, अपनी हालत में जुदा आ जाएगा। इतना खाने के लिए एक बात याद रखिएगा, इंसान की जो कद काठी दुनिया में रखी गई है वही कद काठी जन्नत में नहीं होगी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुस्लिम की रिवायत में कि सारे इंसानों को जन्नत में अला सूरत आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कद काठी के बराबर रखा जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कद काठी कितनी थी? 60 देरा, 90 फीट। यानी हम आज यहाँ दुनिया में 4, 5, 6, 7 फीट के अतराफ में जो पाए जाते हैं ये हमारी काठी नहीं होगी, बल्कि हमारी काठी हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बाप के बराबर 90 फीट होगी, और जन्नत में उसी के मुताबिक सारे अहले जन्नत को रखा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत में ऐसे कमरे होंगे जिनके बाहर अंदर से और अंदर बाहर से दिखाई देगा। अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो लोगों को खाना खिलाते और रोज़े पर मुदावमत करते और उस वक्त नमाज अदा करते हैं जब लोग सोए हुए होते हैं। तबरानी की रिवायत में अहले जन्नत के आराम और आसाइश का तज़किरा है। इंसान खाने पीने के बाद अपनी आरामगाह के बारे में फ़िक्रमंद होता है। इंसान सोचता है कि थकने के बाद उसके लिए आराम की जगह हो, लेकिन एक बात याद रखिए, जन्नत में नींद नहीं आएगी, ये सिर्फ आरामगाह होगी, इसलिए कि नींद मौत की बहन है और मौत को ज़बा कर दिया जाएगा। अब किसी को नींद आने वाली नहीं, ना मौत आने वाली है, तो ना नींद किसी को आएगी ना मौत आने वाली है, ये सिर्फ आराम के लिए होगी, इस्तिराहत के लिए। एक और रिवायत जो बहुत ही प्यारी है मुस्लिम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो एक ऐलान होगा, तुम सेहतमंद रहो, कभी बीमार नहीं होना,
तुम जिंदा रहो, कभी मरना नहीं, तुम जवान रहो, कभी बूढ़े नहीं होना, तुम खुश रहो, कभी गमगीन नहीं होना। ये जन्नत की 4 बहुत बड़ी नेमतें हैं। सबसे पहली चीज़ सेहत। इंसान को दुनिया में भी सेहत मिल रही है तो बहुत बड़ी बात। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया बीमारी से, खास तौर से कोरोना वायरस से जूझ रही है। थोड़ी सी देर में एक इंसान जो कि जवान है, तवाना है, थोड़ी देर में या कुछ मुद्दतों के बाद मौत की आगोश में समा जाता है। कितने लोग मौत की आगोश में चले गए। दिन ब दिन सिर्फ मौत की खबरें आ रही हैं। जन्नत में सारी चीज़ों से आज़ादी होगी। एक इंसान को अगर सारी नेमतें दे भी दी जाए, लेकिन अगर वो बीमार हो, शुगर पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो या और दीगर बीमारियां हो, तो दुनिया की सारी नेमतें होने के बाद उसको वो इस्तेमाल कैसे करेगा? वो मीठा नहीं खा सकता, बहुत सारी लजीज ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सेहत का होना बहुत ज़रूरी है ताकि नेमतों का सही फ़ायदा उठाया जा सके। उसके बाद तुम जिंदा रहो, कभी नहीं मरना। अगर इंसान को सेहत दे दी जाए, सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन ये तय कर दिया जाए तुम्हें 100 साल बाद, 200 साल के बाद इन सारी नेमतों से महरूम होना है, मर जाना है, तो इंसान के लिए एक बदनसीबी की बात है। इतनी नेमतों के मिलने के बाद मौत आ जाए, छीन जाए। कहा कि हमेशा तुम जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी। जवानी इंसानी की ज़िंदगी का सबसे अहम पीरियड होता है और ये उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 30 से 33 साल के दरमियान होगी, जो जवानी की भरपूर उम्र होती है। और इसी के पर अहले जन्नत की उम्रें टिकी भी होगी, ना वो इससे घटेंगे और ना इससे बढ़ेंगे। और उसके बाद खुश रहना, ये नफ्सियात के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान गमज़दा हो, उसके पर बहुत सारी फ़िक्र, बहुत सारे गम उसे सताते रहते हैं। इन सारी चीज़ों से अहले जन्नत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो ये अल्लाह की जन्नत है, उसकी कुछ झलकियाँ हैं जो यहाँ पर पेश की गई। और उसी जन्नत के बारे में अल्लाह कहता है साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह। अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी जन्नत की तरफ लगो, मुकाबला करो। हम दुनिया के लिए मुकाबला करते हैं, अल्लाह कहता है जन्नत के लिए मुकाबला करो। मग़फ़िरत और जन्नत दोनों ज़रूरी है, इसलिए कि बगैर मग़फ़िरत के अल्लाह की जन्नत नहीं मिलेगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मग़फ़िरत और जन्नत। मग़फ़िरत मिल गई, अल्लाह की जन्नत लाजिम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें हमेशगी वाली जन्नत दे और हम पर अपनी रज़ा नाज़िल फरमाए और अपने चेहरे अनवर का दीदार और मुलाकात का शौक़ इनायत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।